اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ علی باقر الحسینی آپ ملتان، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد پر بلندتر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ سلوات پڑھیے۔ سلوات کا پڑھنا زحمت نہیں رحمت ہے، بلند آواز سے پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند کر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ لدن ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمہ ووطد بالصخور میدان ارض۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ درود پڑھیے بلند آواز سے۔ پھر بھی تکلیف فرمائیں، بلند آواز سے درود پڑھیے۔ مالک کائنات آپ کا اس پاک دربار میں آیا، قبول و منظور فرمائے۔ بانی مجلس کا یہ صف ماتم بچھایا، آل محمد قبول و منظور فرمائے۔ ذاکر الاوزان کی ڈپٹی، عزاداروں کی حاضری، آل محمد قبول و منظور فرمائے۔ بے اولادوں کو مالک اولاد نورین عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی مالک توفیق عنایت فرمائے۔ ولایت علی کو سمجھنے کی اور ولایت پہ قائم رہنے کے مالک ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ تمام دعاؤں کی یہی دعا ہے کہ مالک ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہادی و مہدی کا جزا فرمائے۔ دعائیں قبول ہو جائیں، اس لیے درود پڑھیے۔ اجازت ہے سید؟ دو چار جملے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے سلسلہ گفتگو کا جاری ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک بہتر دین اسلام، اور بہتر انسان جس کے پاس دین توجہ گھبرائے تو نہیں۔ اب اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، کیونکہ یہ انہی لفظوں پہ ختم کیا تھا، تو دل چاہتا ہے انہی لفظوں سے آغاز کیا جائے۔ ایک درود پڑھیے بلند آواز سے۔ ان بچوں کو سامنے سے ہٹا دیں، یہ تو پریشان کر رہے ہیں یار۔ اٹھیں، آپ آگے آگے ہو جائیں، ان کو اٹھا دیں، سامنے سے بالکل اٹھا دیں۔ درود پڑھیے، آپ آگے آئیں، آپ آگے آئیں، بڑی دیر آپ آگے آئیں۔ بیٹا ادھر سے سامنے سے ہٹ کے ہو، کوئی آپ کی بات ہے ہی نہیں، آپ بس عبادت کرو۔ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ اللہ نے
اپنی پہچان کے لیے، جنہیں خلق کیا وہ آل محمد ہے۔ توجہ کیجیے، ان تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں توجہ کیجیے پہچانا جاؤں، تو اپنی معرفت کے لیے میں نے محمد کو خلق کیا اپنے آپ سے۔ توجہ کیجیے، خدا کے لیے میں نے محمد کو ظاہر کیا معرفت کے لیے۔ آل محمد کس لیے آئے؟ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے۔ اور ہم کیوں آئے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم آئے عبادت کے لیے۔ دیکھیے خدا کے لیے جا کے تھکا مکافی ہوں، ہم آئے، یہ پچھلے کم از کم ساتھ دیجیے، آپ تو اس طرح پریشان بیٹھے، اللہ آپ کی پریشانی دور کرے۔ بھائی ہم آئے معرفت کے لیے نہیں، عبادت کے لیے۔ آل محمد آئے معرفت کے لیے، میں بھیج رہا تو ہم آئے عبادت کے لیے، وہ آئے معرفت کے لیے۔ جب ہمارا اور آل محمد کا آنا ایک نہیں تو ہماری خلقت ان کی خلقت ایک جیسے کیسے ہے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ اب میں یہی ایک جملہ کہوں گا خدا کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہم خلق ہوئے عبادت کے لیے، آل محمد آئے معرفت کے لیے۔ اور تاریخی جملہ دینے لگاؤ اور آپ کے دل پہ نقش کرنا، لہذا جو عبادت کے لیے آئے وہ خلقی مخلوق ہے۔ میں پھر دہرا دے تو جو پیچھے بیٹھے خدا کی عبادت کرنا، جو عبادت کے لیے دنیا میں آئے وہ خلقی مخلوق ہے، جو اس کی معرفت کے لیے آئے وہ امری مخلوق ہے۔ آج ایک تاریخی میسج دینا چاہتا ہوں، تھوڑا سا پانی بتا دیں بھائی، جہاں تک جنہیں جیسے سننے کی عادت ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کچھ لائن بنی ہوئی ہے باہر، تو شاید وہ ویسے سننے کے عادی ہیں۔ اب سارے تو ایک جیسے نہیں ہوا کرتے نا، کئیوں نے قدیر میں میدان بنایا تھا۔ اب میں کسی کو نہیں ٹوکوں گا، میرے بھائیوں کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو جیسے سنے گا ویسے ہی کھڑا رہے، لیکن اڑا کے دل پہ نقش کرے، جو عبادت کے لیے سبتین شاہ جی آئے وہ خلقی مخلوق ہے، جو معرفت کے لیے آئے وہ امری مخلوق ہے۔ جنہیں آپ بھی نہیں سمجھ آئی تو میں پھر قرآن پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اللہ الخلق ولا الامر، اللہ کہتا ہے خلق کا مالک بھی اللہ ہے، امر کا مالک بھی اللہ ہے۔ نوجوان بیٹھے آج ایک میسیج لے کے جانا، خلق کا مالک بھی اللہ ہے، امر کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو میں نوجوانوں کے لیے تاریخی جملہ دیتا ہوں، جو یہاں ملے گا یہی ملے گا دعا لینے کے لیے۔ بھائی خلق کسے کہتے ہیں، امر کسے کہتے ہیں؟ جو چیز آہستہ آہستہ کسی سبب سے ہو اسے خلق کہتے ہیں۔ خدا کے لیے جاگیے، خدا کے لیے جاگیے بھائی، جو چیز آہستہ آہستہ، جو چیز آہستہ آہستہ کسی سبب سے بنے اسے خلق کہتے ہیں، اور جو بغیر سبب کے بنے اسے عمل کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ دوسرا فرق بتانے لگا ہوں، خالق کیا ہے، امر کیا ہے۔
चीज अनासर अरबा से बने वो खल्क है। यार ये पढ़े लिखे लोग बात है, पढ़े लिखे बंदों के लिए है। जो चीज अनासर अरबा से बने वो खल्क है, और जो अनासर अरबा से पहले बने, खुदा के लिए जागना। वो आप हयात की मजलिस या तारीखी मजलिस होगी, तारीखी मजलिस और तारीखी जुमले, और आके दिल पर नक्श करना। नासिर वाला क्या है? जो चीज पानी से बने, जो चीज आग से बने, जो चीज मिट्टी से बने, जो चीज हवा से बने, वो खल्क है। पता चला जो इनसे पहले बने वो अम्र है। मेरे मोहम्मद ने कहा बलो मा खलकल्ला नूरी, हर शय से पहले मुझ मोहम्मद का नूर है। पता चला मट्टी नहीं थी, नूरे मोहम्मद था। हवा नहीं थी, नूरे मोहम्मद था। मट्टी नहीं थी, नूरे मोहम्मद था। आग नहीं थी, नूरे मोहम्मद था। भाई साल उठाना खलकल्ला हो तबारक तलब यदिल मौत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात। भाई मौत भी खल्क है, फिर मौत नहीं थी, नूरे मोहम्मद था। पढ़े लिखे लोगों के लिए है। नूरे मोहम्मद था, मौत भी मखलूक, हयात भी मखलूक, और मेरा मोहम्मद मौत से भी पहले, हयात से भी पहले। तो जो हयात के बाद आए वो खल्क है, जो हयात से पहले है वो अमर है। मुझे है कि नहीं है? परेशान तो नहीं हुए? अब जुमला कहना चाहता हूं, जो पानी से पहले हो। अच्छा, अब जो चीज सबब से हो, किसी सबब से हो, वो क्या है? वो खल्क है। मसला कतरा था नजीज, उस कतरे से लोथड़ा बना, लोथड़े से हड्डी बनी, हड्डी से बदन बना, बदन से इंसान बना। ये आहिस्ता आहिस्ता बना, इसे कहते हैं खल्क। और जो मरियम के पास आ गया, खुदा के लिए यार, खुदा के लिए यार, खुदा के लिए यार। भाई जिन्हें नहीं समझ आए बेशक ना सुने, लेकिन मैंने एक मैसेज देना, मैसेज भाई ये आहिस्ता आहिस्ता बने, इसे कहते हैं खल्क। और अमरीक उसे कहते हैं। मरियम के पास फरिश्ता आया, जिब्राइल आया, कहा मैं तुझे बच्चा देने आया हूँ। काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहबलका गुलामन ज़किय्या, मैं बेटा देने आया हूँ। मैं बेटा, मैं जिब्राइल को कहना चाहिए था अल्लाह बेटा दे रहा है। खुदा के लिए यार, जिब्राइल को चाहिए था वो कहता अल्लाह बेटा देता है, क्या मैं बेटा देने आया, मैं तुझे बेटा देने। जिब्राइल कौन है? फरिश्ता। तो मैंने क्या फरमाया था का फरिश्ता कौन है? जो मोहम्मद के पसीने से बना। यार खुदा के लिए जिन्हें मेरी वजह से याद है वो तो सर उठाए ना, मेरी मेहनत के साथ उन्हें परेशान। भाई जिब्राइल कौन है? मोहम्मद का पसीना। अब ये बताओ, पसीना बेटा दे सकता है, जिसका है वो नहीं दे सकता। ये तो जो है कि नहीं है? आप तवज्जो कीजिए। कहा मैं तुझे बेटा देने आया हूं। जाओ शाह से लेकर आखिरी आदमी तक बरादरान अहले सुन्नत की किताबों में ये जुमला ना हो तो मैं मुझे। जिब्राइल जब बेटा देने आया था मरियम को, किसकी शक्ल में आया था? मैं मिंबर पे बैठा हूं, माइक मेरे सामने आए, मैदान है, बंद कमरा नहीं। मैंने मटके में मुंह नहीं डाला, माइक पे अपने दोस्त दुश्मन सब की आंखों में आंखें मिला के कर रहा हूं। जब चली है जिब्राइल
किस की शक्ल में आया? मेरे नबी की शक्ल में आया। कहने लगा मैं तुझे बेटा देने आया हूं। और बीबी ने क्या कहा? लाम यमससनी बशरुन, मुझे किसी बशर ने मस नहीं किया। ये खिलाफ फितरत जवाब दे दिया बीबी ने। नौजवानों, बीबी को कहना चाहिए था अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। ये चाहिए था। और बीबी कह रही है मुझे किसी बशर ने मस नहीं किया। यही तो बतूल मरियम बता रही है। आम औरतों का बच्चा पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी। बतूल उसे कहते हैं जो मस हो जाए, मां मर जाए। तो जो है कि नहीं है? कभी भी घबरा नहीं, मैं तुझे बेटा देने आया। कहा ये खल्की बेटा नहीं है। इतने सारे बंदों में मेरे मौजू को छेड़े, लेकिन मैं तुम पे यकीन रखता हूं। भाई कहा बीबी बेटा तो होगा, अल्लाह की मर्जी है, चाहे वो बगैर शादी के बेटा दे दे। इसे कहते हैं अमर। जो चीज सबब से हो वो खल, तवज्जो, जो बगैर सबब के हो। मां का बच्चा पैदा करना खल्क है, बगैर शोहर के ईसा का आ जाना अम्र है। भाई मां का बच्चा पैदा करना खल्क है, बगैर शोहर के ईसा का आ जाना अम्र है। जमीन खोद के सोना निकालना खल्क है, दीवार को सोने का बनाना अम्र है। भाई परिंदे का उड़ना खल्क है, और अबरहा के लश्कर पे हमला करना ये अम्र है। जिन्हें नहीं समझ आई दरवाजे से जाना ये खल्क है, दीवार को दरवाजा बनाना ये अम्र है। भाई डॉक्टर का दवाई में शिफा पैदा करना ये खल्क है, मट्टी को खा के शिफा बना देना ये अम्र है। खुदा के लिए जागिए, तुम्हारी क्या बात है? आपकी क्या मेरे लिए इतना ही काफी है। तस्वीर बनाना और तस्वीर पे जानवर बना देना ये खल्क है, लेकिन तस्वीर के जानवर को जिंदा कर देना, भाई बात करके दिल को जिंदा करना ये खल्क है। ठोकर मार के बंदा जिंदा करना ये अमर है। इधर वाले नहीं है। आया कहा ये बच्चा तो होगा, ये बच्चा तो होगा, ये अमर से है। कहा ये बच्चा कहां से लाई है? ये बच्चा कहां से लाई है? तो बच्चे की तरफ इशारा किया। आतानियल नबी, आतानियल किताबा वजाअल नबिया, मैं किताब लेके आया हूँ, मैं नबी बन के आया हूँ। ईसा कहाँ बोला? मरियम के हाथ में। आखिरी आदमी तक और तारीखी जुमला जो अम्र होगा वो मरियम के हाथों पे बोलेगा, जो औलिल अम्र होगा वो मोहम्मद के हाथों पे बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है भाई, घबराए तो नहीं हो। जो चीज
सतैन शजी अनासर अरबा से बने, वो खल्क है अनासर से। अच्छा, खल्क की मखलूक के लिए वक्त की हद है भाई, तो हो जाएगा नहीं। खल्क की मखलूक के लिए जरूरी है कि वो नमाज पढ़े सूरज को देख के। जुमला आपको सलाम है जो समझ गया है भाई, खल्क की मखलूक नमाज पढ़ेगी सूरज को देख के, सूरज को देखेगी तो नमाज पढ़ेगी। तो पता चला जो सूरज के ताबे हो वो खल्क है, और जिनका ताबे सूरज हो वो अम्र है। भाई घरों में बैठ के तबसरे करना बड़ा आसान है कि ये हम जैसे हैं। अच्छा, अगर यहाँ आ गए हो तो फिर खल्क किसे कहते हैं? खल्की बच्चा जब पैदा होता है तो माँ पे नमाज माफ होती है। चलिए यार, सीने का जोर लगा रहा हो भाई, खल्की बच्चा जब पैदा होता है तो माँ पे नमाज माफ। एक नमाज सुबह की पढ़ ली, बच्चा पैदा हुआ, अब नमाज पिछले बोलो नमाज माफ। तो जिनकी माँ पे नमाज माफ हो जाए उसे खल्क कहते हैं, और जिस हसन की माँ पहले ज़ोहर पढ़े बाद में असर पढ़े उसे अमर कहते हैं। अभी खुदा के लिए दो चार नतीजे देने हैं। देखिए, जब बंदा सो जाता है तो उठे, आप तो चुकी थी इधर मेरी तरफ, जब बच्चा सैयद हसन शाह जी, सप्तान शाह जी, बंदा सो जाता है तो नमाज के लिए उठेगा तो वुजू करेगा। भाई मौलाना से पूछो, वुजू करेगा फिर नमाज होगी। क्यों भाई? मुब्तिलाते वुजू में से ये शर्त है, सो जाओ तो वुजू बात है। आखिरी आदमी था, सो जाओ तो वुजू बात है। अल्लाह का नबी सो रहा था। यार सदके यार, खुदा के लिए सदके यार, मौला तुम्हें सलाम, या हाथ सलामत रहे जो जिक्र अहल बैत में बुलंद होते हैं। तब तैंशा जी मजलिस में हाथ वही बुलंद होता है जिसे सारा खैरात अता करती है। भाई खल्की बंदा सो जाए तो उठेगा तो उसके लिए वुजू करना जरूरी है। तेरा मोहम्मद सो रहा था, इधर जैसे उठा नमाज पढ़ने के लिए, उम्मुल मोमिनीन कहती है मैं जल्दी से दौड़ी, लोटे में पानी भरा, पैगंबर को दूं, पैगंबर वुजू करे। लेकिन अभी मैं पानी लेके रास्ते में थी, मोहम्मद की आवाज, अल्लाहु अकबर। खुदा के लिए जागिए भाई, हमारे लिए तो जरूरी है हम सो जाए तो बाद में उठे तो वुजू जरूरी। बीबी ने सोचा पैगंबर ने ये क्या किया? हमारे लिए किबला यही है कि जब उठो तो वुजू करो। हमें तो शरीयत में पाबंद कर दिया है और खुद बगैर वुजू के नमाज पढ़ रही है। इधर पैगंबर ने सलाम फेरा, बीबी ने पहले कहा अल्लाह के नबी दुआ बाद में मंगाइए, पहले मेरी परेशानी दूर कीजिए, दुआ बाद में मंगाइए। पैगंबर ने फरमाया अच्छा जल्दी कर रही हो तो जल्दी जवाब देता हो, पता क्या है? अल्लाह का नबी हमारे लिए ये हुक्म है कि सो जाए तो उठने के बाद पहले वुजू करे फिर नमाज पढ़े। आपने तो वुजू नहीं किया, कहा जो खल्क से आता है वो वुजू करेगा, जो अमल से आता है वो बात होता है। खुदा के लिए जागिए, ये सलाम है। अभी तो दो चार नतीजे, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा इधर वाले जाग रहे हो?
बेटा आप चुप क्यों है पता है? क्योंकि आपके हाथ बंधे हैं। जब हाथ बंधे हो तो जबान चुप रहती है। तुम्हें पता है पहले हाथ बंधे थे, जब उसके हाथ खुले तो गदीर में बखन बखन कह दिया। भाई ये है हाथ खोलने का कमाल। सलाम है, सलाम है। अच्छा अब तवज्जो कीजिए, खुदा के लिए थका काफी, लेकिन नतीजे क्योंकि आपका ये वक्त जाया ना जाए, क्योंकि आप इन दिनों में 10 दिनों में जो खुराक लेते हैं ना, ये पूरे साल काम आती है। अब मैं कसीदा पढ़ूंगा लेकिन कुरानी कसीदा सुर तो मुझे आती नहीं, क्योंकि अगर सुरीला नहीं तो सरीला भी नहीं। मैं ऐसी खुराक दूंगा, अगर समझ गए तो 1 साल नहीं पूरी हयात के लिए ये खुराक तुझे काफी है। अगर बैठे हो तो फिर सुनो, खल्की बच्चा पैदा होगा तो नजिस हो जाता है। चैलेंज है, चैलेंज। जो खल्क से आए, सलाम है बाबा जी तालू, जो खल्क से आए पैदा हो तो नजिस। इतना नजिस खल्की बच्चा जिस माँ की झोली में आया उसे भी नजिस कर दिया। इतना नजिस ये खल्की बच्चा जिस जगह पे आए, यार खुदा के लिए जाके ना, जिस जगह पे आए वो जगह भी नजिस कर दी, खुद भी नजिस खल्की बच्चा, माँ को भी नजिस कर दिया, जगह को भी नजिस कर दिया। जमीन पे बैठ के आले मोहम्मद के खिलाफ भोंकना बड़ा आसान है, अपने आप को अफजल करना बड़ा मुश्किल है। ये हम जैसे आते हैं उन लोग के पट्टे, तू आता है तो नजीस आता है, ये आते हैं तो इन्नमा युरिदुल्लाह। खुदा के लिए तू आए तो नजीस आए, ये आए तो इन्नमा युरिदुल्लाह। तू आए तो माँ को नजीस कर दे, ये आए तो माँ को 3 दिन सजने में गिरा दे। भाई जागरा, जब खल्की बच्चा आता है तो जगह को नजीस कर देता है, लेकिन जब अमल वाले आते हैं तो जगह को नबियों की सजने का बना देते हैं। ये पिछले घबरा तो नहीं गए, तो पीछे बिल्कुल बैठे हैं। है कि नहीं है? तवज्जो है कि नहीं है? अच्छा अगला तवज्जो, जब तरीके जो लग रहा है, जब तुम नमाज पढ़ोगे, तवज्जो है, बल्कि जब तुम खड़े हो तो तुम्हें क्या पता पीछे क्या हो रहा है, या जो बैठे हो तुम्हें पता है पीछे वाले कैसे खड़े हैं। भाई सामने का पता है ना तुम्हें कि सामने वाला क्या है, यानी दाएं का नहीं पता, बाएं का नहीं पता, सिर्फ सामने का पता है। इसे कहते हैं खल्क। हाय 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 हाय, भाई पता नहीं, इसे कहते हैं खल्क। जिसको दाएं बाएं पीछे का ना पता हो, दाएं को भी कबूल करे बाएं को भी कबूल करे। जिसे दाएं बाएं का पता ना हो उसे खल्क कहते हैं। अल्लाह के नबी ने नमाज खत्म की, पीछे वाले 2 बंदों को बुलाया, कहा तू सजदे में जल्दी जाता है। पीछे वालों 2 को बुलाया, 2 को कहा तू मुझसे पहले सजदे में जाता है, तू रुकू में जाता है, बड़ा तेज है। सैयद मैं जुमला दाग लिया, तू बड़ा तेज है, मुझसे पहले सजदा, मुझसे पहले रकू। कहते अल्लाह के नबी बात तो ठीक है, किसी ने चुगली लगाई है। अल्लाह
अभी बात तो ठीक है, किसी ने चुगली लगाई है, पैगंबर ने फरमाया चुगली नहीं लगाई, जैसे मैं सामने देखता हूँ वैसे पीछे देखता हूँ। भाई तवज्जो है। अच्छा अगर थके नहीं तो खल्क किसे कहते हैं? आप इधर हो तो घर नहीं हो। तो समझ गया सलाम है। भाई मैं जानता हूं कि मैंने कोई फूल कहीं से लिया, कोई फूल कहीं से लिया, बेकदरी नहीं करनी फैसलाबाद वालों इस बात। ये पानी के मजलिस से मैं बैठा मर्जी से, ये वक्त मौलवियों वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने मैं बिठा दिया मुझे, इसलिए जब मैं बैठा हूं तो फिर मौलवी बन के नहीं बैठा। मौलवी बनता तो कोई न सुनता, दरवेश है उसके दरवाजे का मकता बन के बैठा हो। भाई तवज्जो, खल्क किसे के इधर हो अफसर शाही तो घर नहीं हो, घर हो तो दफ्तर नहीं हो। भाई एक जगह पे आ सकते, इसे कहते हैं खल्क। जो एक वक्त में, अब देख तो हम किसका सीना फटता है, जो एक वक्त में एक जगह पे बैठे उसे खल्क कहते हैं। जो एक वक्त में 40 जगह पे रोजा इफ्तार करे, सलाम है थोड़ी अजमत रो। मलिक साहब तो वजह है कि नहीं है? अच्छा रुको मेरे तरफ घूमो इंशाल्लाह है, मौला पे राजी हो, रुको। जो एक होगी, बंदों ने देखा नबी हर वक्त अली के फज़ैल बयान करता है। नबी हर वक्त कहते हैं जो जिस जगह पे अली को पुकारे अली आएगा। ये फज़ैल है अली के, चलो अली को दावत देते हैं। एक गए तो एक अली दावत कबूल करेगा तो फिर दूसरा भी देगा। यार जागना खुदा के लिए। एक गया या अली दावत कबूल कीजिए, कहा कबूल है, आया कहा अब किसी की कबूल नहीं करेगा। दूसरा गया या अली दावत है, अली ने कहा कबूल है। फैसलाबाद वाला मर्जी है ना भाई, कीमती जुमला। तीसरा गया या अली दावत है, अली ने कहा कबूल है। चौथा गया या अली दावत है, अली रजा भाई कहा कबूल है। पांचवा गया कबूल है। अब देखे हर रोजा अफ्तार कहाँ करता है, सुबह हुई कहा जिसके घर आएगा, बाकी कहेगे आया ही नहीं। आए कहा तुम तैयार हो जाओ, हम कामयाब हो गए। रात को अली मेरे घर में था। हाय 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 हाय। दूसरा उठा, उसने कहा बकवास बंद कर, रात को अली मेरे घर में था। तीसरा उठा, सफदर शाह जी बकवास बंद कर, रात को अली मेरे घर में था। चौथा उठा, उसने कहा बकवास बंद कर, अली मेरे घर में था। पांचवा उठा, उसने कहा बकवास बंद करो, ये फैसला पैगंबर के पास गया। अल्लाह के नबी ये कहता अली मेरे घर था, ये कहता अली मेरे घर था। आप ही ने बताइए, रात को अली मेरे घर में था। पैगंबर फरमाते मेरे सहाबा, मेरे तारो, तुम भी झूठ नहीं कहते, मैं भी झूठ नहीं कहता, कल अली मेरे पास था। परेशान हो गए, अब वही का इंतजार करते हैं, वही बताएगा अली किसके घर था। फैसलाबाद वालों, फैसला हो रहा था तो फौरन जिब्राइल मोहम्मद के कदम चूमे, कहा का नबी अल्लाह इन्हें कह रहा है इनको बता दे अली मेरे पास था। हाय 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 हाय। ये हाथ सलामत रहे, मौला तुम्हें जन्नत का माहौल बन गया है, क़यामत का मंजर बन गया है, खदीर का माहौल बन गया है। कि अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे नहीं पता
कोई अली खालिक से थोड़ा है? हाय 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 हाय। अच्छा अच्छा, अगर यहाँ तक आ गए हो तो अगला जुमला, आदम को कहा अल्लाह ने, आदम जन्नत छोड़। आदम जाने लगा, आवाज कुदरत ने कहा या अल्लाह खुद तो कहा है जन्नत छोड़। कहा मैंने ये नहीं पूछा, ये तो लिबास है। यार जागना, खुदा के लिए जागना, ये जो लिबास है ये उतार के जाओ। क्यों? तू खालिक से आया है। और यार खुदा के लिए फैसलाबाद वालों, क्या ये लिबास उतार बाबा माने जी, लिबास उतार। क्यों? खालिक से आया है तो अल्लाह ने ज़माने को बता दिया जन्नत का लिबास खालिक वाले नहीं पहन सकता है, खालिक वाले नहीं पहन सकते। अगर किसी जगह पे तुम्हें जन्नत के कपड़े किसी के सीने पे नजर आए, फिर मानना खालिक से नहीं, आमद से। कल नहीं लाया ये तो जो है कि नहीं, घबराए तो नहीं। अच्छा, खल्कियों के लिए एक कानून है सैयद, एक कानून बन गया। पूछो क्या कानून है? पूछिए। आपने सुभान रब्बियल आला कहा सजदे में, एक दफा वाजिब, फिर सुन्नत, फिर मुस्तहब। अगर 10वीं दफा कहा तो तुम्हारी नमाज बातिल। मेरा चुप मजमा, मेरा सोना और सजान, भाई 10 दफा कहो, 10वीं दफा तो नमाज बातिल। तुम्हें पता नहीं चला खालिक वो है कि जो 10वीं दफा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही सजदे में कहे नमाज बातिल। आमर उसे कहते हैं जो 72 दफा कहे। सलाम है, सलाम है। वो जो है तो जो इधर वाले जाग रहे हो, 2 नतीजे दे दो, नतीजा दे दो। तो जो है नतीजा दे दो। तुम नमाज पढ़ो, नमाज के लिए बात आते तो परेशान हो जाए। जो अलियुल वलीउल्लाह पढ़ता है उसे नमाज पढ़नी चाहिए। तुम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, लेकिन पढ़ते हुए अगर तुमने उंगली का इशारा किया, जुमला वो जो मैं कह गया, बंदे होने परेशान हो गए, मैं आखिरी जुमला में खत्म कर दूंगा। भाई तुमने नमाज पढ़ी, इशारा किया किसी को कोई चीज देने के लिए, तो ये कानून आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज बातिल हो जाएगी। अभी नहीं समझ आई? जो जिसकी नमाज फेले कसीर से बातिल हो जाए उसे खल्क कहते हैं, और जो रकू की हालत में अंगूठी दे अल्लाह की कसम, शायद किसी का सीना फट जाए। जुमला तो याद कहना ही पड़ेगा। अब देखूंगा मेरा किसका कच्चा पक्का होता है। इतना बड़ा खल्क है। जागना, खुदा के लिए जागना। तेरा नबी कुरान पढ़ रहा था, अबू जहल आया, कहता मन हादल कलाम, किसका कलाम है? का अल्लाह का कलाम है। कहता है अगर अल्लाह का कलाम है तो मुझ पे अज़ाब है। जागना, खुदा के लिए। ये तो खल्क की बात थी। अब आमिर से सुनो, आमिर का और आमिर किसे कहते हैं? का ये अल्लाह का कलाम है तो मुझ पे अज़ाब है, अल्लाह का कलाम है तो मुझ पे अज़ाब है। अल्लाह ने अज़ाब नहीं भेजा, बल्कि ये कह दिया मोहम्मद जहां तू है, यार किसी इंतजार में हो, यार किसी इंतजार में हो, सीना फट रहा है मेरा, मोहम्मद जहां तू आए, वह अज़ाब कैसे भेजो, वह अज़ाब कैसे भेजू? जहां तू है वह अज़ाब नहीं आया। अब अल्लाह को कहे इसी कानून पे पक्के रहना। मैंने एक वक्त देखा था, 18 से हज थे, अली की विलायत का ऐलान
किया था। हारिस बिन नुमान फहरी आगे बढ़ा, उसने कहा अल्लाह अगर अली को मौला बनाया है तो मुझ पे अजाब भेज। आज मोहम्मद भी है, अल्लाह ने अजाब भी भेज दिया है। पूछो या अल्लाह वजह क्या है? क्या मोहम्मद के होते हुए अगर अजाब ना आए तो वो हिफाजत आमर था, अगर अजाब आ जाए तो हिफाजत औलिल आमर है। तो जो है कि नहीं सैयद, अजाब आया, पिछले बोलो अजाब आया, पत्थर आया, सर फटा, सीने में गया, गुजरता हुआ जानवर तक पहुंचा। अब मैं देखता हूँ तारीख किस किस को याद है, मैं बहुत पीछे की तारीख बता रहा हूँ। जानवर का सीना फाड़ा, उसे भी काटा। या अल्लाह, इसका तो कसूर था, इसने गुस्ताखी की, जानवर का क्या करे? बात खत्म हो गई, नतीजा आखिरी बात का मुकद्दर तुम्हारा अपना। या अल्लाह, इसने तो गुस्ताखी की थी, अज़ाब मांगा था, जानवर का क्या कसूर था? आवाज आई, जो जानवर अली के दुश्मन को किसी भी मैदान में सवार करे वो जानवर नहीं, वो शैतान हो। मौला तुम्हारी जिंदगी दराज फरमाए, मौला तुम पे राजी है, आले मोहम्मद तुम्हें लाखों इबादतें नसीब फरमाए। ऐसी दुनिया अगर मान लेती कि आमर और खल्क में फर्क क्या है तो ज़ैनब कैद ना होती। मरहबा मरहबा, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, यकीनन इंतजार कर रहे थे। मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए। अज़ादार बैठे हो, हमारी माएँ बहनें रो रही हैं, बड़ी आज़ादी है इन्हें। सैयद, मैंने कुछ ज्यादा पढ़ना है। हमारी माएँ बहनें पर्दे में रो रही हैं, बड़ी आज़ादी है, ना इन्हें कोई तमाचा मारता है। कि तुम ना रो, ना इन्हें कोई दो नौजवान तेरी बहनों का पर्दे से, ना इन्हें कोई ताजिया ना मारता है। ये रो रही है, कोई कुछ नहीं कहता। वाह हुसैन, सदके तेरे गले के तबीज सकीना के। मरहबा मरहबा, आफरीन आफरीन। मैंने कुछ ज्यादा पढ़ना चाहिए। आज की सैयदादियाँ महफूज हैं, पर्दे में बैठी हैं, इन सैयदादियों को कोई मारता नहीं, कोई रोकता नहीं। मरहबा, कोई टोकता नहीं। कुर्बान सैयदे सकीना के, जो छुप छुप के बाजार शाम के हर जगह पे कहती सजाद शेमर देख तो नहीं रहा, बाबा को रो लो। मरहबा मरहबा। आप सैयदों में एक हुक्म, मैं जल्दी नहीं करता, मेरा भाई कहता है तू नौजवान है, हुसैन का ज़दार है, तो फिर मुझे माफ कर देना। भाई ने कहा जल्दी ना कर, तो फिर दो जुमले सुन लो। जिंदगी का कोई पता नहीं है, सुनोगे? 250 ऊंट लेके गरीब चला। अब तुमने कहा है ना तो मेरा दिल बन गया। 70 ऊंटों पे गरीब के खैमे, 40 ऊंटों पे खाने का सामान, 30 ऊंटों पे पानी की मशकें और 12 ऊंटों पे अकबर की शादी का सामान। मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरी जिंदगी दराज करे, आले मोहम्मद कुछ पे राजी हो। फिर सुनाओ, ऐसे ही 12 ऊंटों पे जो पत्थर का दिल है उसका सामने नहीं,
सैयदों का कोशिश करता हूं वो पूरा कर लो। माँ की कब्र पे आए और आई बीबी ज़ैनब, कहा माँ तुझे सलाम करने आई हूं। अम्मा तुमने मुझे कहा था कभी भी ज़ैनब किसी जगह पे मेरे हुसैन को अकेला नहीं छोड़ना। अम्मा मैं साथ जा रही हूँ, अम्मा मैं तुझसे वादा करती हूँ वापसी पे हुसैन को पापा कहने वाला होगा, मुझे माँ कहने वाला नहीं होगा। आज सैयदों ने हुक्म दिया, फिर जो बोला तेरे बहन का तू तो इंतजार कर रहा था। अम्मा वापसी पे बोला तेरे मातम कबूल करे। अम्मा वापसी पे हुसैन को बाबा कहने वाला होगा, मुझे माँ कहने वाला नहीं होगा। अब मुझे माफ कर सैयदों, करबला के मैदान में हर बीबी ने हुसैन पे औलाद दी, ज़ैनब ने अपनी नस्ल कुर्बान कर दी। मरहबा, मौला तेरे बैर कबूल करे, मौला आले मोहम्मद तेरा आया कबूल करे और मौला तेरी हाय कबूल करे। सैयदादा सुनोगे अज़ादारो, मौला तेरी हाय कबूल करे। वापसी पे हुसैन को बाबा कहने वाला होगा। अब अगला जुमला मरहूम आका नसीम अब्बास रिजवी का पढ़ता हो, वो कहता है कोई काज़मी सैयद है, कोई मूसा काज़िम का पत्ता का दिल है, तो मैं नहीं समझना। कोई कहता था हम काज़मी सैयद है, कोई कहता है हम रिजवी सैयद है, कोई कहता है हम नकवी सैयद है। और यार कभी कभी ये कहा करो हम ज़ैनब के बेटे हैं। मौला तेरी हाय का माता कहा करो हम ज़ैनब के बेटे हैं। और यार ज़ैनब को माँ कहने वाला कोई रहे, और यार ज़ैनब के बेटे मर गए। मौला तेरे आले मोहम्मद जी सिवाय गम शफीक जी, मौला जी मैं तेरा नौकर यार सैयद, मौला तेरी ये मातम कबूल करो, बेटा तेरी बहनों के प्रति सलामत हो। मौला तेरे आंसू जी हैं यार, कभी कभी कहा करो हम ज़ैनब के बेटे हैं। यार ज़ैनब के बेटे कोई नहीं रहे। अज़ादारों सुनोगे ना, नस्ल कुर्बान की क़यामत का मंजर था ना, मुझे अली की इज्जत की कसम सैयदा, क़यामत का मंजर था जब बच्चों को पता हो ना कि हमने मरना है, फिर आखिरी आस ये होती है हमें माँ प्यार भी करे। मरहबा मरहबा, हमें माँ प्यार भी करे और सैयद हमें माँ सीने से भी लगाए। अज़ादारों जब ये छोटे बच्चे पत्थर के दिल का मैं नहीं जामिल खत्म होगी मजलिस, जब ये मौला तेरी हाय कबूल करे, जब ये छोटे बच्चे माँ के सामने आए, बीबी ज़ैनब ने मुंह इधर कर लिया। सैयद माफ कर देना, इधर आए, बीबी ज़ैनब ने मुंह इधर कर लिया। रो के कहते अम्मा तुझे पता है हमने मर जाना है, अम्मा हमारी आस है हमें एक भरोसा दे दे। अज़ादारों माफ करना, माँ की आवाज आई, अगर तुम चाहते हो मेरा भरोसा तो मेरी 3 शर्तें हैं। कहा अम्मा क्या शर्तें हैं? कहा पहली ये शर्त है कि जब भी कोई मरा था फुरात के पानी के तरफ देखा था, अगर तुमने पानी के तरफ देखा ज़ैनब दूध नहीं। मरहबा मरहबा मरहबा, मौला तेजियो सैयद, मौला तेरे बहन कबूल करे। आलिम अगर तुमने पानी की तरफ देखा, सैयद आखिरी जुमले खत्म करूंगा, सारा कल्ब लेते आना कबूल सुनना ज़ादारो, कामा कबूल है। अम्मा बोझा लेने के लिए दूसरी शर्त बता। कहा बेटा याद रखना जो भी शहीद किया, का याद रखना दूध नहीं बख्शोगे जब तक तुम अकबर की जानी के पाए। अज़ादारो आप देख लो, ये ज़ैनब की जानी है, ये बच्चे हैं। अज़ादारो जब 11
मुझे ये बताओ मेरी जोड़ी कहाँ मारी गई, कहाँ कबर की जागीर के बाहर मारी गई। अदादारों ये कहना था बीबी नहीं रोई, उसे माफ करना। हुसैन ने कहा ज़ैनब तू रोती क्यों नहीं है, कहा सदकों पे रोया नहीं जाता माता, सदकों पे रोया नहीं जाता। मेरे करीब बैठ, जितनी देर तू चाहेगा उतनी देर मैं तेरा चेहरा देख लो। अदादार आज फिर बच्चों पे रोना ज़ैनब की हसरत नहीं है, और करबला के गरीबों